آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تربیت اولاد قسط 2۔ اس سے پہلے خطبے میں قسط 1 کے تعلق سے بچوں کے حوالے سے کچھ نصیحتیں کی گئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ بچوں کے تعلق سے کچھ نصیحتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، آج مسلم معاشرے میں بچوں کی قرآن و احادیث کی تعلیم و تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بچوں کی فطرت کو سامنے رکھ کر ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے بچپن سے ہی ان پر محنت کرنی چاہیے، کیونکہ بچہ ایک موم کے مانند ہوتا ہے۔ آپ اسے جیسا ڈھالو گے ڈھل جائے گا، جس سانچے میں ڈالنا چاہو وہی روپ اختیار کرے گا۔ بڑے ہونے کے بعد اس میں پختگی آ جاتی ہے، پھر اسے بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بچے ایک سفید کاغذ کے مانند، وائٹ پیپر کے مانند ہوتے ہیں۔ اب اس سفید کاغذ پر قرآن و احادیث کی بھی چھپائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دیگر بری چیزوں کی بھی چھپائی ہوتی ہے۔ اب یہ ماں باپ پر دار و مدار ہے کہ اس وائٹ پیپر پر آپ قرآن و احادیث کی چھپائی کریں یا اس کے علاوہ دیگر بری چیزوں کی چھپائی کریں۔ جیسے کہ پہلے خطبہ جمعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی تھی، ما من مولود الا فطرت علی الفطرۃ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنائے، چاہے تو اسے نصرانی بنا دے یا چاہے تو اسے مجوسی بنا دے۔ تو یہ سارا دار و مدار ماں باپ کی تعلیم و تربیت پر ہوتا ہے کہ بچپن سے اس کی کیسی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں مسلم معاشرے میں اکثر و بیشتر والدین بچوں کو قرآن و احادیث کی تعلیم دینے کے بجائے بچوں کو دنیاوی تعلیمات کی طرف زیادہ توجہ دلاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے بھی والدین دیکھنے کو ملتے ہیں جو بچے کی فیوچر کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اس وقت سے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے، وہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا کہ اس کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کی فیوچر کے لیے سوچنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ آج ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اور جہاں پہ ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کی فیوچر کے لیے ماں کے پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے اس وقت سے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم و دینی تعلیم و تربیت کے لیے ایسے ہی سوچیں اور خیال کریں، کیونکہ اکثر والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو اچھے سے اچھے تعلیم، معیاری تعلیم، دنیاوی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، انگلش اسکول میں اور بڑے بڑے یونیورسٹی اور اسکولوں میں داخلہ دلواتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتا۔ اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ انگلش کے کچھ الفاظ بولنے لگتے ہیں تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کا بچہ انگلش بول رہا ہے، حالانکہ ایسے ماں باپ کوتاہی کر جاتے ہیں، وہ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم کو معیاری دیتے ہیں پر اسلام کی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ دوسرے کی تقلید میں اپنی پہچان کو ختم کر دینا، اپنی پہچان کو شرمندگی کا باعث سمجھنا، یہ غلط چیز ہے۔ اس لیے آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچیاں اور بچے کس طرح دین اسلام سے پھر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے بچپن سے ہی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا اس کے لیے۔ لہذا ضرورت
اس بات کی ہے کہ ہم بچپن سے ہی بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، تب جا کر بڑے ہو کر یہ بچہ کچھ بڑا کام کرے گا۔ آپ سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے والدین نے بچپن سے ہی ان پر محنت کی ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے دونوں سائڈ جو لائبریری ہے، اس میں جو بڑی بڑی موٹی موٹی حدیث کی کتابیں ہیں، یہ وہ اسلاف ہیں جن پر اس کی ماں نے، ان کے والد نے بچپن سے ہی ان پر محنت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے شخصیات ہیں جنہوں نے قوم و ملت کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہے۔ لہذا والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں تمہیدی طور پر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر ہم غور و فکر کریں اور ان کے مطابق ہم عمل کریں۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن و احادیث کے تعلق سے کچھ نصیحتیں والدین کے لیے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ باتوں کی تلقین کریں جو بہت ہی مفید ہے دور حاضر کے لحاظ سے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ بچوں کو گالی گلوچ اور اسی طریقے سے بیہودہ گفتگو، فحش گوئی سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہم دیکھیں بچوں کے بگڑنے کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی اسباب بہت ہی زور و شور سے چل رہا ہے کہ بچے ہمارے بد زبان ہو چکے ہیں، فحش گوئی، بد کلامی میں مبتلا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زبان کی حفاظت کی اہمیت کی تعلیم دیں اور انہیں بتائیں کہ زبان کی حفاظت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو گالیاں دینے کے تعلق سے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، کہ والدین کو گالیاں دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آپ کسی کی باپ کو گالی دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے، آپ کسی کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ آپ اگر کسی کی ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو وہ پلٹ کر آپ کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، گویا کی وجہ آپ ہی بنے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف ہم اپنی زبان سے جو گالیاں بکتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے یا دوسروں کے لیے وہی گالی، بلکہ یہ بھی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پلٹ کر وہ آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو گویا کی وجہ ہم ہی ہوئے۔ لہذا بچوں کو ہم ہمیشہ اس بات کی تلقین کریں کہ وہ بد زبان اور گندی زبان گالیاں بکنے سے بچے، فحش گوئی، فحش کلامی سے بچے وہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی پہل کرے گا اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہی ہوگا، جب تک کہ وہ سامنے والا زیادتی نہ کرے۔ یعنی اگر آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں اور اگر سامنے والا پلٹ کر اسی کی مقدار گالیاں دیتا ہے تو دونوں کے گناہ آپ کے اوپر ہی پڑے گا، ایک تو خود آپ کا بھی اور سامنے والے کا بھی، جب تک وہ زیادتی نہ کرے۔ لہذا گالیاں دینے سے بچوں کو منع کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، کہ مسلمان کو گالیاں دینا یہ نافرمانی ہے اور اسے قتل کرنا یہ کفر ہے۔ لہذا بچوں کو ہم ہمیشہ تلقین کریں کہ وہ کسی کو بھی گالی نہ بکے، خصوصاً اپنے والدین کو، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے دوسری نصیحت جو بچوں کو کریں وہ ہے بچوں کو خالی ٹائم میں فلم دیکھنے یا اسی طریقے سے جو شارٹ کلپ آج کل موبائل پہ بچے گھنٹوں پاس کر دیتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے گندی ناولیں، ڈائجسٹ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، ان چیزوں میں صرف غلط چیزوں کو اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے اخلاق و آداب میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو ان چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے انہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی تلقین کرے، سیرت طیبہ پڑھنے کی اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے اچھے واقعات پڑھنے کی تلقین کرے اور انہیں ان موضوعات پر کتابیں مہیا کرے تاکہ وہ اس سے استفادہ کرے۔ اس کے علاوہ خالی ٹائم
जो होता है बच्चों को बताएं कि ये बहुत बड़ी नियमत है। आज हम देखें अक्सर लोग दो नियमतें ऐसी हैं जो उन्होंने खुद अपना नुकसान कर रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नियमतानी मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहहतु वल फराग़, कि दो नियमतें ऐसी है जो लोगों ने काफी नुकसान कर रखा है। उनमें से एक ये है सेहत व तंदुरुस्ती और दूसरा है फारिग औकात, यानी आपके पास जो खाली टाइम है ये इन दोनों चीजों का आज मुसलमानों ने भुला दिया है बिल्कुल। लिहाजा बच्चे को बताएं कि खाली टाइम ये बहुत ही बड़ी नियामत है, हम इसकी गनीमत को समझे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। उन्हीं में से एक चीज है वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, कि मशगूलियत से पहले अपनी फारिग औकात को, अपने खाली टाइम को गनीमत समझो। लिहाजा बच्चों को बताएं कि फारिग औकात में अच्छे से अच्छे काम करें और बेकार और बेहुदा गुफ्तगू और इसी तरह बेकार चीज़ों में ज़ाय न करें और दीगर कुतुब अहादीस वगैरह का मुताला करें। बच्चों की इन बातों की हम ज़रूर तलकीन करें। इसी तरीके से एक चीज़ है बच्चों की बिगड़ने की जो बहुत ही ज़्यादा बहुत असबाबों में से एक सबब है, वो है बुरी सोहबत। यानी आज बुरी सोहबत की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। बुरी सोहबत से बच्चों को रोकना ये अज़हद ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के ज़रिए से अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल बयान करते हुए फरमाया, बहुत ही बेहतरीन मिसाल दी कि मसलुल जलीस अस्सालिह वस्सू कहामिलिल मिस्की व नासिल कीर, फहामिलुल मिस्की इम्मा अन युहरियका व इम्मा अन तब्ताअ मिन्हु व इम्मा अन तजिद मिन्हु रिहन तय्यबतन व नासिल कीर इम्मा अन युहर्रिक़ सियाबका व इम्मा अन तजिद रिहन खबीसतन। बुखारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल कस्तूरी उठाने वाले, कस्तूरी बेचने वाले इंसान और भट्टी में फूंकने वाले इंसान की तरह है। कि कस्तूरी बेचने वाला इंसान, उठाने वाला इंसान या तो आपको खुशबू हदियतन देगा, तोहफे में देगा, या आप उससे खरीदेंगे, या कम अज कम आपको अगर उसने तोहफे में, गिफ्ट में खुशबू न दिया या आपने उससे ना खरीदा तो कम अज कम आपको उससे अच्छी खुशबू जरूर मिलेगी। और बुरे दोस्त की मिसाल भट्टी में फूंकने वाले इंसान की तरह है, या तो वो आपके कपड़े को जला डालेगा या कम अज कम आपको बदबू जरूर आएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही प्यारे अंदाज में अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल बयान की। लिहाजा हम बच्चों को हमेशा अच्छे दोस्त के साथ रहने की तलकीन करें, क्योंकि अच्छे दोस्त हमेशा आपके बच्चों को अच्छाई की तरफ रहनुमाई करेगा और बुरे दोस्त जो होंगे वो हमेशा बुराई की तरफ रहनुमाई करेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे दोस्त के साथ रहने की तलकीन करें और हम ध्यान भी दें कि हमारा बच्चा किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, किसके साथ उनकी दोस्ती है, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान दें। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी आपका दोस्त जैसा होगा, आप सामने वाले जैसा होगा, उसी तरह आपकी भी नेचर हो जाएगी। लिहाजा दोस्ती ये बहुत बड़ी नियामत है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे दोस्त के साथ रहने की तलकीन करें। इसी तरीके से औलाद को गाने सुनने से भी रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाने सुनने से ये दिल मुर्दा हो जाता है, और जब दिल मुर्दा हो जाएगा हम समझ सकते हैं फिर हम नेकियां नहीं कर सकते, भलाइयाँ नहीं कर सकते, हम बुराइयाँ ही बुराइयाँ करेंगे। इससे अखलाक व आदाब में बिगाड़ पैदा हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, लयकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिरा वल-हरीरा वल-खम्र वल-मआज़िफ़, कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग जरूर आएंगे जो ज़िनाकारी, रेशम का लिबास, शराब नोशी और मौसीकी को, गाने को हलाल तस्वुर कर लेंगे। आज हम देखें ये चार चीजें हमारे मुआशरे में धड़ल्ले के साथ पाई जाती है। गोया कि ऐसे लगता है कि ये चारों चीजें हलाल है, जबकि ये बिल्कुल हराम है, कबीरा गुनाहों में से है। आज हमारे बच्चे को देखें, छोटे छोटे बच्चे शराब नोशी, जिनाकारी जैसे बुरे आमाल में मुलव्विस है। इसी तरीके से गाने सुनना ये इस कदर इसमें मुलव्विस है, क्या आप अंदाजा नहीं लगा सकते। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल
और गाने सुनना, गंदे गंदे शॉर्ट क्लिप वगैरह सुनना, ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों के नेचर में हो गई। यार हमें चाहिए अपने बच्चों को गाने सुनने से बचाना चाहिए। और आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ज़िनाकारी और शराब नोशी जैसे बड़े ही भयानक और ख़तरनाक गुनाहों के साथ इसका तज़किरा किया है। लिहाजा गाने सुनने से अपने बच्चों को ज़रूर रोकना चाहिए। इसी तरीके से हम अपने बच्चों को खाने पीने के आदाब भी सिखलाएं। उन्हें बताएं कि बिस्मिल्लाह करके पढ़ के खाना चाहिए, दाहिने हाथ से खाना चाहिए, खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। आज हम देखें हमारे बच्चों के ताल्लुक ये सारी दीनी तालीमात बिल्कुल नापलीद है, नाआशना इन सारी चीज़ों से। हमारे बच्चे ये एक ट्रेन हो चुकी है कि बच्चे बाएं हाथ से खाते हैं, छोटी छोटी दुआएं मालूम नहीं, खाना खाने से पहले की, उसके बाद की, वॉशरूम में जाने की, उससे निकलने की, मस्जिद में आने की, मस्जिद से निकलने की दुआएं मालूम नहीं। और अगर बच्चों से अगर हम किसी फिल्म की स्टोरी सुने तो 3 घंटे की 4 घंटे की स्टोरी वो धड़ल्ले से सुना देते हैं, 4-4 5-5 मिनट के गाने वो सुना देते हैं। और अगर उनसे एक दुआ पूछ लें तो उनको मालूम नहीं होता। खाने खाने से पहले की दुआ सिर्फ बिस्मिल्लाह अगर बच्चे को हम पूछ लें तो वो भी नहीं बता सकते। ये आज हमारे मुआशरे के बच्चों की ये हालत है और इसके जिम्मेदार वालिदैन है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को खाने पीने के आदाब और दीगर बहुत सारे आदाब है, मस्जिद में दाखिल होने के, मस्जिद से निकलने के, घर में दाखिल होने के, घर से निकलने के क्या आदाब है, इनसे हम जरूर उसे रोशनास कराएं, उसे जरूर बताएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हजरत उमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं छोटा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठा था। खाने के लिए बैठे तो मेरा हाथ दस्तरखान में प्लेट में इधर उधर जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल बिम्मा यलीक, कि ऐ बच्चे बिस्मिल्लाह करके खाना खाओ और दाहिने हाथ से खाना खाओ और अपने सामने से खाओ। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी तालीम दी बच्चों को। हजरत उमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जब से सुनी, ये नसीहत जब से सुनी, उसके बाद में पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के मुताबिक ही खाना खाता रहा। लिहाजा हमें चाहिए हम अपने बच्चों को खाने पीने के आदाब जरूर सिखलाएं। इसी तरीके से एक नसीहत है वो ये वालिदैन के लिए कि बच्चों के साथ अदल और इंसाफ कायम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास अगर कई औलाद हैं तो आप किसी को कोई चीज़ दें तो किसी को महंगी, किसी को सस्ती, या किसी को दें या किसी को ना दें। इस तरह नहीं होना चाहिए। अदल और इंसाफ कायम करना चाहिए बच्चों के दरमियान, चाहे वो माल तकसीम करने के ताल्लुक से हो या घर के दीगर छोटे छोटे ज़रूरियात की चीज़ें, मसलन कपड़े दिलवाना या खाने पीने की चीज़ें दिलवाना, इनमें भी अदल और इंसाफ कायम करना चाहिए। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालिद ने मुझे कुछ माल देना चाहा तो मेरी माँ ने कहा कि जब तक आप इस बात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाही नहीं बना लेते मैं उसे नापसंद करती, मैं इससे पसंद नहीं करती। चुनाचे मेरे वालिद ने मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप अपने तमाम औलाद के साथ ऐसे ही करना चाहते हैं, यानी बराबर हिस्सा देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, उनके वालिद ने, कि नहीं, मैं सिर्फ इसके साथ ही ऐसा करना चाहता हूँ, इसे ही माल देना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह वअदिलू फी औलादिकुम, अल्लाह तबारक व तआला से डरो और अपनी औलाद में अदल व इंसाफ कायम करो। इसी तरीके से दूसरी रिवायत में है, इन्नी ला अशहदु अला जौरिन, कि मैं जुल्म पर गवाही नहीं बन सकता। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के दरमियान नाइंसाफी को जुल्म से शुमार किया है। लिहाजा हम अपनी औलाद के दरमियान जरूर अदल व इंसाफ कायम करें। इसी तरह आज हमारे मुआशरे में बेटे और बेटियों में फर्क करते हैं हमारे मुआशरे में। यानी अगर बेटे हैं किसी के पास और किसी के पास बेटियां, तो बेटे और बेटियों में फर्क करते हैं। मसलन बेटे को ज्यादा अहमियत देते हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी चीजें लाके देते हैं, और बेटियों को कमतर समझते हैं, उन्हें हकीर समझते हैं। गोया कि ये कुफार और मुशरिकीन की जो आदत थी, जो अतवार थी दौरे जाहिलियत की, वो हमारे अंदर भी आ चुकी है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व कज़ीम, जब कुफार मुशरिकीन को
बेटियों की खुशखबरी सुनाते तो उनका चेहरा झुक जाता था, काला हो जाता था और वो हमारे गुस्से के भड़क उठते थे। लिहाजा बच्चे, बेटे और बेटियों के दरमियान जो हमारे अंदर जो बुरी सिफत है कि उनके दरमियान हम आदल इंसाफ नहीं करते, ये बहुत ही बुरी सिफत है, ये कुफार मुशरिकीन की सिफत है, हमें इसे बचना चाहिए। इसी तरीके से वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को वक्तन फवक्तन तालीम देते रहे। बाप अपने बच्चे को तालीम दे कि वो माँ की फर्मा बरदारी करे, उसके साथ उसने सुलूक करे, उसका कहा माने, उसे झिड़के ना, उसे उफ तक भी ना कहे। इसी तरीके से माँ अपने बच्चों को कहे कि माँ बाप का ख्याल रखे, उनकी बात को माने, उनके साथ उसने सुलूक करे, उनकी बात को माने। एक दूसरे को वक्तन फवक्तन इन बातों को नसीहत करनी चाहिए। पिछले खुतबा जुम्मा में मैंने आप हज़रात के सामने जो लुक़मान हकीम की चंद नसीहतें बयान की थी, उनमें से एक ये भी नसीहत थी कि वालिदैन के साथ इताअत और फर्माबरदारी करना, खुसूसन वालिदैन माँ के साथ हुस्न फर्माबरदारी करना ये ज़्यादा अफजल है और लुक़मान हकीम की नसीहत में माँ के साथ हुस्न सलूक करने की ज़्यादा तलक़ीन है। इसी तरीके से कुरान व अहादीस में भी बहुत सारी जगहों पर माँ बाप के साथ हुस्न अखलाक के साथ, अच्छे अखलाक के साथ पेश आने की, उनकी फर्माबरदारी करने की बहुत ज़्यादा तरगीब व तरहीब है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को वक्तन फवक्तन अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए नसीहत करते रहें कि उनकी फर्माबरदारी करें। इसी तरीके से औलाद को ये नसीहत करें कि पाकी व सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि पाकी व सफाई ये ऐसी चीज़ है जिसे कुरान व अहादीस में निस्फ़ ईमान करार दिया गया है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत-तुहूर शत्रुल ईमान, कि पाकी ये आधा ईमान है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले और पाकी व सफाई का ख्याल रखने वाले को पसंद करता है। लिहाजा बच्चों को तलकीन करे कि वो पाकी व सफाई का ख्याल रखे, अपने कपड़े का, अपने जिस्म का, अपने घर का और दीगर आसपास के जगहों का ख्याल, पाकी व सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि कुरान व हदीस में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। आज हम देखें अपने मुस्लिम मुआशरे में किस तरह गंदगियाँ फैली हुई है। आज लोगों में ये चीज़ें आम है कि अगर आपको मुस्लिम मुआशरा देखना हो, जायज़ा लेना हो, तो आप उनके महल्ले में चले जाएं, उनके महल्ले की गंदगियाँ देखकर आपको पता चल जाएगी कि ये मुस्लिम मुआशरा है, जहाँ जिस उम्मत के मानने वाले हमें जिस तालीम की फॉलो करने वाली जिस तालीम को, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाकी व सफाई ये आधा ईमान है। लेकिन आज हमारी हालत ये हो गई है कि लोगों के सामने हम गंदगी और दीगर बुरी चीज़ों के ताल्लुक से हम जाने जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को पाकी व सफाई सुथराई रहने की तलकीन करें और ख़ुद भी हम पाकी सफाई का एहतमाम करें। इसी तरीके से जिस तरह हम वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुनियावी तालीम व ताल्लुम का एहतमाम करते हैं, उसी तरह दीनी तालीम देना भी उनके लिए लाज़िम व ज़रूरी है। ख़ास करके आज के दौर में दीनी तालीम व तरबियत देना बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस हवाले से सबसे पहले आप बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दें और उन्हें कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के लिए कहें। अगर वो हाफिज़ बन जाता है तो ये बहुत बड़ी नियामत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्हीं बच्चों के ज़रिए से क़यामत के दिन बच्चों के वालिदैन के सर पर ताज पहनाया जाएगा। अगर पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ न कर सके तो कम अज़ कम अम्मा पारा 30वां पारा ज़रूर हिफ्ज़ कराएं और इसी तरीके से उनके अलावा दीगर मुंतखब आयात भी याद करवाएं और मुंतखब अहादीस वगैरह भी याद कराएं और अक़ीदा वगैरह की तालीम भी हम बच्चों को ज़रूर दें। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के अंदर ये सारा मुनज़्ज़म सिस्टम है और बच्चों को कम अज़ कम 6 साल का जो कोर्स होता है उसमें अम्मा पारा ज़रूर याद कराया जाता है पूरे 6 साल के अंदर। तो ये आपकी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है कि आप बच्चों को मकतब में इस्लामी तालीमात की तरफ ध्यान दें और उन्हें दाखिला दिलवाएं ताकि आपका बच्चा दीनी तालीम व तरबियत से रोशनास हो सके। इसी तरीके से वालिदैन पर लाजिम है कि वह अपने बच्चियों के लिए बचपन से ही पर्दे के एहतमाम करें। आज हम देखें हमारी बच्चियां 10-10 साल की, 12-12 साल की हो जाती हैं और बगैर दुपट्टे के घूमती रहती हैं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है।
اللہ तबारक व तआला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम मुस्लिम उम्मतों, तमाम मुस्लिम खवातीन से पर्दा करने की तलकीन करे और उन्हें कहे कि एक बड़ी चादर के जरिए से अपने सर से लेके पांव तक ढक लिया करें, और ताकि वो पहचानी जाए और उनके साथ अजियत और तकलीफ ना पहुंचाया जाए। इस आयत के अंदर आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा की खवातीन को ये हुक्म दे कि एक बड़ी चादर के जरिए से सर से लेके पांव तक ढक ले और पर्दे का एहतमाम करे। उसकी हिकमत ये बतलाई गई है कि ये ताकि वो पहचानी जाए कि ये शरीफ घराने की औरत है, और बापर्दा होना ये बाहया की दलील है, इसी तरीके से बेपर्दा होना ये बेइज्जती की दलील है। लिहाजा इस आयत करीमा के अंदर ये साफ मालूम होता है कि अगर हम शरीफ घराने की औरतें कहलाने के मुस्तहिक अगर होंगे तो हमें चाहिए कि हम पर्दे के एहतमाम करें और बचपन से ही अपनी बच्चियों को पर्दे के एहतमाम करने की ज़रूर तलक़ीन करें। खुसूसन जब हमारे बच्चियाँ, हमारी माँ बहनें बाज़ार में जाएं तो पर्दे का ज़रूर एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब औरतें घर से निकलती हैं तो शैतान उसके पीछे लग जाता है। तो अगर हम पर्दे का एहतमाम करेंगे तो लोग ये जान जाएंगे कि ये शरीफ घराने की औरत हैं, फिर उनके साथ ज्यादती और तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फला युज़ैन, उनके साथ कोई ज्यादती और तकलीफ नहीं होगी। तो हमें चाहिए कि हम बचपन से अपनी बच्चियों को पर्दे के एहतमाम जरूर करवाएं। इसी तरीके से एक और नसीहत है जो बच्चों को देने की जरूरत है। एक जामिया हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत की कई नसीहतें की, और वो नसीहतें हम सब के लिए, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, बहुत ही कीमती है। और वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करते फरमाया, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा, ए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं तुम्हें कुछ नसीहतें करना चाहता हूँ, कोई नफ़ा बख्श नसीहतें। तो हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, या गुलाम अला उअल्लिमुका कलिमातिन यनफ़उकल्लाहु बिहिन्ना, कि ए बच्चे मैं तुम्हें आज नफ़ा बख्श बातें बताना चाहता हूँ जिनके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नफ़ा पहुँचाएगा। तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि क्यों नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली नसीहत की वो थी इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, कि तुम अपने दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करेगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अहकाम को नाजिल किया है उसे माने तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास को जो दूसरी नसीहत की वो ये थी इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, कि तुम अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ न करना। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो हद मुक़र्रर की है, जिस काम को करने के लिए कहा है, जिससे मना किया है, उससे तजावुज़ न करना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी नसीहतें जो कि हजरत इब्न अब्बास को ये थी, व इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब भी तुम मांगो तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। इसी तरीके से चौथी नसीहतें की कि व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और जब तुम्हें मदद की जरूरत हो तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से ही मदद तलब करो। ये कुछ नसीहतें थी, और भी कुछ चीज़ें रह गई और टाइम ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह इसके अगले पार्ट में ये सारी चीज़ें कवर होंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर जो कही गई कुरान व हदीस की रोशनी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने बच्चों को सही तालीम व तरबियत कुरान व हदीस की रोशनी में देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह के रसूल और एक शायर का कौल है, अरबी में उसका तर्जमा कर देता हूँ
کہ آپ بچے کو اگر بچپن سے اس کے دینی تعلیم و تربیت دیں گے تو یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی آنکھوں کی یہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی. اور بچپن سے ان کی دینی تعلیم و تربیت کے اہتمام کرنا یہ ایسے ہے جیسے کہ پتھر پر نقش کرنا، یعنی پتھر پر کوئی چیز اگر آپ بنائیں تو وہ مٹتی نہیں ہے. اسی طریقے سے بچپن سے ہی اگر آپ کی دینی تعلیمات کریں اگر اپنے اولاد کو، تو انشاءاللہ آخرت تک قیام جب تک وہ زندہ رہیں گے تب تک وہ باتیں ان کی ذہن میں نقش رہیں گے اور ان کے مطابق وہ عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دینی تعلیمات دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جب تک ہم زندہ رہے ایمان پر رہے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.